हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। माय नेम इज़ पूजा एंड आई एम हियर फॉर अ lovely video, and the topic of this today's video is lovely pets. We all have pets. Sometimes we have birds, sometimes we have tiny animals, sometimes we have bigger one. So let's discuss about the pet animals, and when we talk about a pet we can talk about its type, यानी वो कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, फूड खाते क्या हैं, बॉडी पार्ट्स, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स अलग होते हैं जो उनको डिफरेंट बनाते हैं, एक्शंस किस तरह की उनकी हरकतें होती हैं, क्या करते हैं, होम वो रहते कहाँ पर हैं, अपीयरेंस कैसे दिखते हैं, एंड कैरेक्टर किस तरह का उनका बिहेवियर होता है. सो वी विल ऑल डिस्कस on such topics in this video. One more thing which I would like to add in this video, that these are videos which I am making are totally depend on NEP 2020, like National Education Policy 2020. In National Education Policy 2020, the core area and the main major focusing area is FLN, that is Foundational Literacy and Numeracy, in which the basic concepts पे जो है वो बहुत ज़्यादा focus किया गया है to enhance your basic, to enhance your vocab, to enhance your basic things. I am preparing all these videos, so I hope you all will like it and watch the video till the end to enhance your vocabulary. Okay, so without wasting any moment, let's start. So first we will discuss about the types of pet. As you can see in pictures that there are few animals as well as birds you can see. So number one is a mouse, chooha, a rabbit, a parrot, a guinea pig, a frog, कुछ लोग frogs को भी पालते हैं, a fish, and the picture is a clownfish, a turtle, a cat, और cat के बच्चे को बोलते हैं a kitten, a hamster, a chinchilla, a dog, और dog के बच्चे को बोलते हैं puppy या puppy. Sometimes we called in a cuddly language that puppy, but it is a puppy. Okay, let's read the dialogue box. Kiko is my pet. She is a kitten and I love her. Kiko है ये one minute. This is Kiko. She is a kitten and I love her. I have a pet rabbit. Her name is Sugar. My pet is a parrot. He is called Solo. ओके मतलब पैट का नाम जो है वो पैरेट है, जो पैट है वो पैरेट है और उसको सोलो कह के बुलाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पेट होम्स एंड देयर फूड्स. क्या कहाँ रहते हैं एंड कहाँ क्या खाते हैं. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ एनिमल्स दिखने में बहुत छोटे होते हैं, साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ एनिमल साइज़ में बहुत बड़े होते हैं. तो साइज़ के हिसाब से उनके घरों का जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो जाता है. Like in first picture you can see a kennel या dog house या puppy house. कुत्ते का घर को हम kennel बोलते हैं and the spelling is KENNEL. You have to learn all these spellings also. ठीक है, तो kennel यानी कुत्ते का घर. A cage यानी पिंजरा. केज में normally birds रहती हैं. A worm, a tank. Fishes oftenly lives in tanks और इन एक्वेरियम. तो और उस पर कुछ कुछ worms भी रहते हैं. तो worm as you can see in this picture like this is a worm and this is a whole tank. A basket, kitten oftenly lives there. जो बिल्लियाँ हैं, बिल्ली के बच्चे हैं वो बास्केट में रहते हैं. ठीक है. Now let's see what things they use for their eating purpose. Bones, meat, rice, pet food, green vegetables, fishes, hay यानी घास या चारा. bones को हड्डी बोलते हैं, normally dogs uses it. seeds and fruits. dialog box क्या कहता है कि my dog sleeps in a kennel. he eats rice, meat and bones. he does not like fruit. Another dialog box.
My cat sleeps in a basket. Her favorite food is fish. ठीक है। अब अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो हर एनिमल एक अलग तरीके से दिखता है। कुछ एनिमल्स बहुत बड़े दिखते हैं एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन सी सम टाइनी एनिमल्स। तो ह्यूज, बिग, टाइनी, स्मॉल, दीज आर ऑल्सो सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, सो यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो। नाउ ह्यूज यानी विशाल या बड़ा, और कुछ एनिमल्स बिल्कुल छोटे छोटे टाइनी होते हैं यानी स्मॉल। ठीक है। कुछ एनिमल्स बहुत फरी होते हैं, लाइक उनके जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा रेशेदार या बालों के साथ होती है, तो उन एनिमल्स को फरी बोलते हैं। किसी किसी एनिमल्स की जो है वो फर कम होते हैं, उनकी स्किन नॉर्मली होती है, देन वी विल कॉल देम स्किनी और थिन। कुछ एनिमल्स जो है वो दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं, देन वी विल यूज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड क्यूट फॉर देम। Beautiful is also a describing word, and when we found some beautiful animals, then we will use the word beautiful. And some animals are very cuddly. Okay. My bird BB is a tiny and beautiful. She sings every morning. She has a lovely voice. Let's read the second dialogue box. My rabbit Dodo is cute and cuddly. I sometimes watch TV with him. I sit on the sofa and put him on my lap. क्या कह रहा है कि मेरा रैबिट डोडो बहुत ही क्यूट और कडली है। मैं उसके साथ कभी कभी टीवी देखता हूँ एंड आई सिट ऑन द सोफा, मैं सोफे पर बैठ जाता हूँ, एंड पुट हिम ऑन माई लैप, और अपनी गोदी में उसको बैठा लेता हूँ। तो इन सब चीज़ों को के डिस्कशन के बाद लेट्स कम टू द पॉइंट, एंड द पॉइंट इज बॉडी पार्ट्स। हर एनिमल की जो इंडिविजुअलिटी होती है वो डिफरेंट होती है, एंड देर आर सम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विच मेक देम डिफरेंट एज एन इंडिविजुअल। सो लेट्स डिस्कस अबाउट अ बर्ड फर्स्ट। बर्ड्स हैव बीक, यानी जो चोंच होती है वो बर्ड्स को अदर एनिमल से डिफरेंट बनाती है। A wing. Birds have wings by which they can fly. A claws. जो चिड़ियों की बनावट होती है उनके पैरों की, वो पंजे उनके अलग होते हैं, and there is a different vocab for them, that is claws. हम जो है वो birds के पैरों के लिए leg या foot bird का यूज़ नहीं करेंगे, there is a different vocab, that is claws. Now नीचे कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि जो कोई कोई चिड़ियाँ होती हैं जिनकी जो बीक होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होती है। किसी किसी के जो फीदर्स होते हैं बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं, विंग्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कलरफुल होते हैं। किसी किसी के जो क्लॉज होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, और किसी किसी के जो विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा वाइड यानी बड़े बड़े होते हैं। सो इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है, जो अपीयरेंस होता है, वो अलग अलग चिड़ियों का अलग अलग भी हो सकता है, बट बॉडी पार्ट्स विल रिमेन द सेम। Now, let's talk about the another pet animal, that is cat. Cat के पास जो अलग चीज़ होती है which make him or her different, that is whiskers. उनके पास मूछें होती हैं इस तरह से, ठीक है। उनकी बॉडी फरी होती है and a tail, उनकी एक पतली पूँछ भी होती है। अब whiskers और tail में भी अलग अलग चीज़ों का डिफरेंस होता है, लाइक किसी किसी के लॉन्ग विस्कर्स होते हैं, किसी की कर्ली टेल होती है, किसी के सॉफ्ट फर होते हैं, और किसी किसी के जो पंजे होते हैं बहुत ज़्यादा फरी होते हैं। क्लॉ भी बोलते हैं और पा भी बोलते हैं, यानी पा बोलते हैं पैडेड फीट्स को, यानी गद्देदार जो उनके पैर होते हैं ना उनको, पंजों को। फिश में जो उसको अलग बनाता है सभी एनिमल से वो होते हैं उसके पास फिन्स। ये देखिए, जो मछली का जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तब हम ये जो चीज़ बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ फिन, जो उसको तैरने में मदद करती है। और फिश की बॉडी पर ये इस तरह की जो जो स्ट्रक्चर्स यू कैन सी, इसको बोलते हैं स्केल्स। टर्टल को जो चीज़ सबसे ज़्यादा डिफरेंट बनाती है दूसरे एनिमल से वो होता है उसके पास एक हार्ड शेल होता है। ये शेल इतना हार्ड होता है कि व्हेनेवर ही फाइंड एनी काइंड ऑफ डेंजर, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, ही पुट ऑल हिज लेग्स, हैंड्स एंड हर हेड इनटू दिस shell, so and protect himself. So as you can see in these pictures, there are some different body parts which make them different individually.
Now let's read the dialogue box. My parrot Solo has colorful feathers. He uses his sharp beak to eat seeds. यानी जो पैरट सोलो है उसका बहुत ही कलरफुल उसके पास पंख हैं और वो बहुत ही एक शार्प चोंच होती है जिससे वो सीड्स खाने में यूज़ करता है. My cat Kitty likes to touch me with her furry paw. Her fur is soft, her tail is curly. यानी जो कैट किटी है मेरी वो मुझे अपने जो फरी यानी जो फरदार उसकी जो पंजे हैं उनसे छूना पसंद करती है. हर फर इज सॉफ्ट, उसके जो फर है बहुत सॉफ्ट है और उसकी जो पूंछ है वो बहुत ही कर्ली है. तो आज इस वीडियो में इतना ही. आप इसको देखें, अच्छे से लर्न करें. इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी और उसमें हम डिस्कस करेंगे उसके कैरेक्टर्स को, कौन से डॉग के क्या कैरेक्टर्स होते हैं, किस तरह का उनका साउंड होता है. वी विल ऑल डिस्कस अबाउट इट. ओके देन, बाय बाय. खूब अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए. बाय बाय बच्चों.